दर्शक बंधु यही आईन जो विभिन्न दिग रही जहाँ पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट रे मामला दायर करते सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः तीनोटी धारा को ताऊपर प्रतिबंधक लगे रोक लगे एसबू कार्यकारी नियंत्रक संस्था गठन पर्यंत यह स्थगित रखा सेहीपरि वाकफ संपत्ति राज्य जमी रे जबरदखल करिछि कि नहीं तार निष्पत्ति नेबार अधिकार सरकारी कर्मचारी को दि जाई परिबो नहीं। अर्थात जो कलेक्टर अनेक समय जो ये विवादर समाधान करने जड़े अथॉरिटी भाव में उभा होते ताकू सुप्रीम कोर्ट मना कर सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ कहते केवल न्यायिक फोरम एभली विवादर निष्पत्ति नहीं पारे अर्थात हाईकोर्ट नहीं पारे कौन ट्रिब्यूनाल नहीं पार जे पर्यंत वाकफ ट्रिब्यूनाल मामला गुड़िक ग्रहण न कर पर्यंत कौन तृतीय पक्ष बा कलेक्टर विशेष भाव में जिलापाल कथा कहुई तृतीय पक्षर अधिकार सृष्टि करा जाई परिबो नाही। सेहीपरि वाकफ बोर्ड रे अण मुसलमान सदस्यों संख्या संपर्कित धारा को मध्य स्थगित रखा जाए जमती केंद्रीय वाकफ परिषद रे हाईएस्ट 4 जन अर्थात 4 जनरू अधिक अण मुस्लिम सीट रही पारे नहीं। आउ स्टेट वाकफ बोर्ड रे कौन राज्य वाकफ बोर्ड रे 3 जन अण मुस्लिम सदस्य रहे ताठू अधिक रही पारे नहीं। तेणु ताकू मध्य सुप्रीम कोर्ट सेठी मध्य कैपिंग करिसंती। एहा सहित से भी आहरी कहिसंती जे वाकफ बोर्ड रो जो पदाधिकारी सदस्य मुसलमान हेबा उचित अधिक पदाधिकारी सदस्य केंद्र सरकार चलित वर्ष प्रारंभ में वाकफ आईन में व्यापक संशोधन आनी यह विरोध में सुप्रीम कोर्ट को जाइए अनेक व्यक्ति और संगठन। मुख्य विचारपति जस्टिस बी आर गावाई और जस्टिस एजी महीशकर खंडपीठ ए मामलार विचार करी केतेक धारा को स्थगित रखिछन्ति। ए संपर्क में सुप्रीम कोर्ट जो वरिष्ठ आईनजीवी अछन्ति तांकर प्रतिक्रिया रही प्रथमे शुणंतु। See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate. So basically, the stay is on that the government cannot create any third party interest. They have until or unless the title is being cleared on the Waqf property. So earlier the collector had the right to just to take the property, the alleged Waqf property in its possession. And then the government revenue records, they need to verify. And then accordingly, because the possession was earlier been taken by the government. So now the Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way stayed the provision until a proper mechanism is devised, and that is why. दर्शक बंधु सुप्रीम कोर्ट सीधासलख भाव में यार किसी धारा को स्थगित रखिंट रहितादेश लगाई संशोधित वाकफ आईन को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय मूलतः 3टी दिग रही। गोटे दिग कौन ना वाकफ्र जमी कौगुड़िक ताकू आइडेंटिफाई करने से विवादर समाधान करने कलेक्टर को दायित्व दि जाऊला जोटी सुप्रीम कोर्ट कहले गोटे ट्रिब्यूनाल गठन करा न्यायिक प्रक्रिया तार विचार हम हाईकोर्ट ए प्रसंग में मत रखिपारे। तेणु संभवतः यही जो कलेक्टर मान जो पावर दि जाइथिला सुप्रीम कोर्ट कर ए जो वर्तमान इंटरिम ऑर्डर पर संभवतः से रोक लगिला। एक
द्वितीय कथा है जड़े वाकफ रे जदि तार जमी दान करने जाऊँगी तार कौन प्रकार से वाकफ रे तार जी से दवापाई चाहूँगी से अति कम 5 वर्ष पर्यंत से इस्लाम धर्म रही मुसलमान हो सुप्रीम कोर्ट कहले ये भाव में गोटे निर्दिष्ट मानदंड बा समय सीमा रखा ये ठीक नुहे से से उच्छेद कले। एवं तृतीय बड़ कथा कहले जे अनेक गुड़िए जो स्टेट बोर्ड अच्छी आउ आपणकर नेशनल काउंसिल अच्छी जो गुड़िकर वाकफ काउंसिल बा नेशनल काउंसिल रे अनेक गुड़िए अण मुस्लिम सदस्य रहुचंदी ताकू मध्य सुप्रीम कोर्ट गोटे कांछाण करछंती निर्दिष्ट भाव में 3 जण होउचंती स्टेट बोर्ड रे एवं 4 जनरू अधिक आपणकर अण मुसलमान रही पारिबे नाही गोटे वाकफ बोर्ड रे ता मध्य आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ उपरे मध्य रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट तेणु संभवतः वाकफ आईन आपण अनुच्छेद 374 उपरे ए रोक लगा जाइछि। एने आउ किछि प्रतिक्रिया रही कांग्रेस मध्य प्रतिक्रिया रही देछि अन्य विरोधी दल मध्य प्रतिक्रिया रखिछंती सुनन। मेरी जानकारी में 3 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगाया है और जैसा कि आपने कहा इंटरिम फैसला है तो प्राइमा फेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये कि जो कानून लाया गया था ये किसी खास इंटेंशन से लाया गया था वो गलत था अन्याय था और लेट से अगर पूरा वर्डिक्ट आएगा तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो तो इनिशियल इंजंक्शन जो भी मिला है कोर्ट पर सबको भरोसा रखना चाहिए कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो सबको न्याय मिलेगा। मैं कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सवाल हम लोग का भी था सदन में कि आप जैसे डीएम को इन्वॉल्व उसमें करेंगे, खासतौर पर बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, हालांकि पूरे देश में होगा लेकिन बिहार में आप देखिएगा तो बिहार में डीएम का जो पद है बड़ा महत्वपूर्ण पद है और ये लोग ऑटोमेटिकली बहुत सारा व्यस्तता इनके पास में होती है, टाइम नहीं होता है। एक तो मेरा टाइम को लेकर के अभाव है, आप डीएम को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिना मतलब का इन्वॉल्व कर रहे हैं डीएम। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है, तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है, इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट। शुणुले आपण मैंने प्रतिक्रिया संपर्क विश्वजित दास आम सहित अच्छा सुप्रीम कोर्टर वरिष्ठ आईनजीवी आम विस्तृत भाव चर्चा करवा। सुप्रीत दास आपको स्वागत करुच्ची नंदी घोष टीवी को। अनुच्छेद 374 उपर गोटे रोक लग जाइए, 3टी प्रमुख धारा उपर स्टे लगे सुप्रीम कोर्ट एवं ये गोटे दीर्घदिन धरी विवाद लगी रही है वाकफ आईन जार संशोधन करागला से किसी एभली त्रुटिपूर्ण विचारधारा रही त्रुटिपूर्ण नीति रही जहाँ को नहीं लोकों मन संशय सृष्टि होची। सुप्रीम कोर्टर ए इंटरिम राय केते दूर वर्तमान समय रे भारतर नागरिकों को यह राहत देछि बा आश्वस्ति देछि? Well, this is only an interim measure. आपण जानती गोटे वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ रो गोटे जेते बेले कोनोसी गोटे पार्लियामेंट हो बा स्टेट लेजिस्लेचर कोनोसी गोटे लॉ बनांती हमारा देशर गोटे फंडामेंटल प्रिंसिपल होची बिकॉज दैट इज मेड बाय ए इंस्टीट्यूशन, ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, it is always presumed to be constitutionally valid. But there are also exceptional circumstances where जेतेबेले challenge हुए constitutional validity टा सेतेबेले constitutional court like high court and supreme court, at least in this case the honorable supreme court also while staying only 3 important elements and allowed the entire statute to operate. In fact, the central government also can take a credit for this, that okay, the entire statute has not been stayed, though that was the petitioner's premise, it should be stayed, but that is not happened.
only the three important parameters re jo thre ki for example separation of the constitutional institutions, for example judiciary and executive ro jo separation of power achi जोटा कि आपनकर जो डिस्प्यूट जदि क्रिएट हो गला गोटे वक्फ प्रॉपर्टी को बा गवर्नमेंट लैंड बोली जदि गोटे कलेक्टर को जो पावर एग्जीक्यूटिव पावर दिया है टिल द टाइम इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी will be subject matter of dispute and will not be a work property. So ए जो प्रोविजन ता छिति ताकू से माने स्टे करछंती on this principle. These are of course extraordinary circumstances because the honorable court generally केबे भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रे से स्टैट्यूट को स्टे करेनी एथरे मध्ये करनांती तेनु टू बिगिन विथ दिस इज अ बैलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन फैक्ट जो आपनकर 5 वर्ष जो रिक्वायरमेंट रखी था स्टैट्यूट रे प्रोविजन रखी कि जो माने प्रैक्टिस 5 वर्ष जदी से माने इस्लाम को जदी न मानुथबे जदी सेट की प्रैक्टिस न करथबे ताले से माने तांको प्रॉपर्टी को वाक को देई परिबे नै सो दिस इज आल्सो अनदर बिकॉज़ दिस इज ए individual right mu manakar gote individual I have my right whatever I want to do respect my property what does it has a stake so obviously state doesn't have a much of a say on an individual right unless and until it is a government property so as a public policy je gote statute gote individual right ta ku gote state right ta ku kari tobo seita ku sei principle bolare eta ku stay kara gala आ गोटे नंबर 3 जो प्रिंसिपल जो नंबर 3 क्लॉज ta ku stay करा जाई जो थरे की आपनकर जो डिसीजन निया जीव जो वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड हला बा सेंट्रल वक्फ काउंसिल हला तादरे जो नॉन मुस्लिम्स माने नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स माने जोरा को नॉन मुस्लिम कैटेगरी रे रखा जाइतला तांकर संख्या अधिका थिला आज्ञा एटा को क्रिएट पैरिटी बिटवीन दी डेमोक्रेटिक कांसेप्ट रे प्रिंसिपल रे ताकू वर्तमान सेटा को गोटा लिमिट करा जाइछि टिल द टाइम दी फाइनल हियरिंग हैपन on the constitutional validity of a different provision of this bill this act amendment act से पर्यंत ए जो काउंसिल रो नंबर ऑफ मेंबर्स मानु को गोटे लिमिट करला गोटे इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which is quite right because obviously the law has just come in and you don't expect that the law will on its own will change the substratum of the entire dispute where a property rights is involved. Many a party is having, like for example, government property. Of course, the government has a right to dispute its property. Individual property, which has also gone into वक्फ just because they have been used, that is called by मध्य प्रदेश user, में सेमती देखी जो वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं जो विवाद सृष्टि होता बढ़िया कथा आप उल्लेख कले जे एथिरे 3-4टी गुरुत्वपूर्ण दिग रही जहाँ संपर्क में श्रीयुक्त विश्वजीत दास वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीम कोर्ट अति सुंदर भाव में विश्लेषण करते जे सुप्रीम कोर्ट ए गोटे इंटरिम ऑर्डर किंतु तार आहरी डिटेल ऑर्डर आगक आसबार अच्छी पूर्व वर्तमान जो वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ रही जड़े जदि सो मोटो निज इच्छा स्व इच्छा किसी धार्मिक काम करने दान करने चाहते से स्थित दान कर जोगुड़िक रेजिस्टर होनी तार मालिकाना किभली भाव में रहा पाखे व्यापक व्यवस्था जहाँ को अनेक वाद विवाद थिला तापरे आमेंडमेंट आसला एवं सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय आसला आउ किछि रिएक्शन अच्छी सहयोगी दिव्यरंजन अच्छी आउ किछि रिएक्शन अच्छी इस प्रसंग में शुणु लगाई है जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा ये सबसे बड़ा पॉइंट था क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है हम इस फैसले का जहाँ तक डीएम साहब की बात है स्वागत करते हैं और बाकी चीज़ें के वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? देखिए वक्फ बिल के सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हम उसका वेलकम करते हैं और बहुत ही आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो शक और शुबहा था मुसलमानों को में वक्फ बिल को लेके उसको तमाम चीज़ों को क्लियरिफाई कर दिया है चाहे नॉन मुस्लिम मेंबरान की बात हो चाहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो इन तमाम चीज़ों को बहुत ही साफ तौर पे बता दिया कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपण मैंने शुणुले विस्तृत भाव में अति सरल भाषा जड़े जदि अति अति साधारण व्यक्ति पचार कौन मिलला आम कौन पाइबू गोटे धाड़े कहवा गले किसी प्रॉपर्टी बा किसी संपत्ति अच्छी जहाँ आज पर्यंत स्वाधीन भारत में भारत स्वाधीन पूर्व वक्फ बोर्ड बा मुसलमान जो बोर्ड रही अनुसार जहाँ को दान धर्म धर्म जहाँ को दान तार
प्रॉपर्टीर मालिकाना कहा पाखरे रहिबो ताकू गरीब लोकों को दिया जीवो कि से संपर्क में वैल्यूएशन केमती हम जो विवाद रही तार समाधान केमती हम ता ऊपर अनेक समय किसी निर्दिष्ट लोक हक जाहिर कर किसी बोर्ड हक जाहिर कर सब गवर्नमेंट हम ना बोर्ड हम ये जो वाद विवाद थिला एथिरे अनेकांश वर्तमान सुधार आसीपर समय जाइए आम गोटे छोटिया ब्रेक नवा ब्रेक पर आउ गोटे भल टपिक रही राज्य में कहीं बारंबार सारर अभाव देखा मिलूँ।